on the Business Nation TV video podcast, we have Shriman Prashant Mukund Das ji. He's a spiritual guide and a senior counselor for ISKCON Temple in Dwarka in Delhi. So, Hare Krishna, Prabhuji, and Hare Krishna. thank you so much for joining. Thank you for giving your time to Business Nation TV and to us, and to gracing, and thank you for gracing the platform. So, I just like to tell the audience that the motive behind today's video podcast is to have a discussion on how to stay in present or the power of now. So to begin this conversation, I'd just like to put up a question or give a personal experience that what I have seen from my personal experiences that if a person is worried or angry or is having anxiety, she's mostly thinking about something from a past situation and is creating a situation of future. So, Right. Prabhuji, how do you interpret this, and what is your take on it through your experience and through your knowledge? Actually, absolutely, Udavi, you have mentioned it perfectly that when we are living in our past, we cannot Mhm. focus in the present situation. So, Right. whenever we are in angry mood or in tension, actually, there is a term called preconceived notions. Preconceived notions means we prepare something according to our past experiences. We think that future experience will be going the same. So that is why there is a word called fear. Fear Hmm. means FEAR. False evidences appears real. It appears to be real, but it is actually false. Right. So for such people, those who want to live in present, they should not worried about their past and they should not think about their future. They should stay in their present, and as much as they can stay in present, their productivity can grow. They can increase their productivity. Their performance will be 100% instead of their weaker performance if they think about their past experiences and try to analyze the current situation or the future situations on the basis of their preconceived notions. So, like as we come from ISKCON, we follow Bhagavad Gita. Bhagavad Gita mentions like Arjun was also on the battlefield of Kurukshetra and was not ready to fight, whereas Krishna in 45 minutes spoke Bhagavad Gita just to make Arjun understand that don't live your life on the preconceived notion that these are my family man. If I kill them, what will happen next? So Krishna make him understand that whatever is happening is by the will of God. So just if you surrender everything on the will of God, you will see wonders, miracles happening in your life. So that Krishna made him Arjun understand. And in today's era, every student, every youth, every newcomer into the startups, entrepreneurs, they should understand that they should give their 100%, but having 100% believe on God also. If they Right. don't believe on God and they keep just keeping worried about what will happen, so that reduces our performance and productivity. So just give your 100% and just leave everything on the God's hand, and you will see wonders happening. All right. So you rightly mentioned that one should definitely focus on the present and focus on giving results from on their own end. They should focus on the process. मतलब जो वो काम कर रहे हैं उस पे उनको focus करना चाहिए rather than Exactly. focusing on the results. वरना प्रोडक्टिविटी घट जाती है ना, वरना क्या होगा कि आज मुझे परफॉर्मेंस देनी है और मेरी Hmm. 20% चिंताओं ने आज की परफॉर्मेंस को घटा दिया कि पिछली बार मेरे एग्जाम में कम नंबर आए थे, पिछली बार मेरा स्टार्टअप में लोन क्लियर नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आज जो मुझे करना है वो उसकी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस घट जाएगी. ओके. तो जैसे हमें पता है कि आपको इतनी वास्ट नॉलेज है, मैं आपको इधर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप श्रीमद् भगवत गीता से कोई ऐसा श्लोक सुनाएं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट में ना रह के कोई बंदा प्रेजेंट में रह के हाउ शुड ही स्टे इन द प्रेजेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ कोट और व्हाट काइंड ऑफ श्लोकास यू कैन give a depiction here which explains that why should one stay in the present and how should one do that, how should think that one think that way, and how can one behave that way to be in present, and how to take the decisions being in present. Yeah. So there is a very popular shloka from Bhagavad Gita, which is known by the entire world. That is, Karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phal heturбhu mato sango astu akarmaniya. So this shloka is divided into four parts: A, B, C, D. First is Karmanyavadhikaraste.
God has given only the adhikar of karma, means we have the power of actions, nothing else. We can perform 100%. That power is given by God. Then the part 2 is ma phaleshu kadachana, means the result is not in your hands. You give your 100%, maybe you get the result as 50%, or you can get 120%. It is just depending on the God. Then thinking this, that everything is done by God, so sometimes people think that if the success comes in my life, I will share the credit to me. That because of my hard work, the success is with me. Because of my hard work. But Krishna is saying कि you cannot consider the credit with you, even of the failure or even of the success. Sometimes Right. we are on a 50-50%. हम बोलते हैं कि success हो गई तो it's all because of me. अगर फेल हो गया तो भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? So Krishna is saying माँ कर्म फल हेतुर्भूत. हेतु means आप उसको अपना क्रेडिट भी नहीं दे सकते, सक्सेस का क्रेडिट आप नहीं दे सकते. तो चौथा पार्ट है इस श्लोक का. व्यक्ति सोचेगा जब मुझे सक्सेस मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है और सब कुछ भगवान के हाथ में, तो फिर मैं काम ही क्यों करूं? सक्सेस होगी तो अपने आप आ जाएगी, मेरे को घर में मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी. So at that particular time, one need to understand Krishna is saying कि कर्म अकर्म में भी आपको आसक्त नहीं होना है. मीन्स अपने एक्शंस को छोड़ना नहीं है, अपने कर्म करने बंद नहीं करने हैं. कीप डूइंग योर कर्मस एज इट इज. अपने कार्य को करते रहना है. तो आप जी. अपने कार्य को करते रहिए, कार्य में आसक्त भी मत होइए. लेकिन भगवान ने आलसी होने को नहीं कहा है कि भगवान के सहारे छोड़कर बैठ जाओ कि ओ गॉड यू विल डू इट. नो, कृष्णा विल डू इट ओनली. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अपना 100% देके रिजल्ट को छोड़ दो, बाकी जो होगा भगवान भरोसे. ऐसे प्रयास करना चाहिए. राइट. तो इसमें प्रशांत जी एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो इसके अंदर आता है, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड. सो आई जस्ट लाइक टू आस्क दैट व्हाट इज द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड डज इट कंट्रोल व्हाट वी थिंक इन द प्रेजेंट. इसमें ये चीज देखिए, पूछने से पहले आई जस्ट आस्क यू टू गिव अ स्मॉल ब्रीफ टू द पीपल वाचिंग अस दैट व्हाट इज द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेजेंट. So there are three types of consciousness. One is consciousness means we are conscious. मैं भी कॉन्शियस हूँ कि उदयवीर जी से मैं बात कर रहा हूँ. मैं अभी एक डिस्कशन पॉइंट फोरम में हूँ, एक पॉडकास्ट में हूँ. ये कॉन्शियस माइंड है. एक है सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी देर में प्रोग्राम ओवर होना चाहिए. एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियसली होता है कि मेरे कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अनकॉन्शियस स्टेट में चल रहे होते हैं. कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, वो भी बिंद्रा था, वो मेरे से ऐसे बिहेव करा था, वो मेरे से पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, वो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है. एक सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है और एक कॉन्शियस माइंड चल रहा है. तो ये तीन तरह के माइंड इकट्ठे आकर के हमारे काम को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो भगवत गीता मेंशंस if you convert your consciousness into Krishna consciousness, like ISKCON terminology कहती है International Society for Krishna Consciousness, means if you think that whatever is going to happen is in the hands of God, भगवान के हाथ में है. और इसीलिए अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण के हाथ में दिया था कि ओ कृष्णा यू ड्राइव माय चैरियट एंड आई जस्ट बी द सरेंडरिंग अनटू यू. मैं आपके सरेंडर हूँ, शरणागत हूँ. व्हाटएवर वे यू वांट टू लीड माय चैरियट, आप उसको लीड करो. तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति कर सके कि भगवान के भरोसे होकर के और 100% अपना देकर के अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस करने का मतलब है आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड. मैं भगवान के लिए वो कार्य करता हूँ. तो आप देखेंगे आप हमेशा अच्छे कामों को ही हाथ लगाएंगे, गलत काम होने बंद हो जाएंगे. क्योंकि गलत काम ही हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे काम हमको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. किसी ने हमें धोखा दिया हो, किसी ने हमें फ्रॉड किया हो, किसी ने हमारे साथ में कुछ गलत बिहेव किया हो, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है व्हाइल वी आर इन कॉन्शियस स्टेट. हम शॉपिंग करने जाएंगे, सो व्हेन यू आर शॉपिंग करेंगे तो हम सोचेंगे कहीं शॉपकीपर हमें लूट ना ले. शॉपकीपर सोचेगा कहीं कस्टमर मुझे फ्रॉड ना कर या पैसे ना ले जाए मेरे. तो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे बहुत सारे. बिकॉज ऑफ दिस हमारे साथ जो पुराना हुआ है ना, कहते दूध का चला छाछ को फूक फूक के पीता है. तो हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड में चलता है. अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाए तो हम सोचते हैं whatever is happening is my reaction of karmas. जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जो कर्म मैंने किए हैं उसका फल मुझे मिल रहा है, तो घबराने की क्या बात है.
तो फिर मुझे टेंशन फ्री होना चाहिए। लॉस भी होगा तो मेरे कर्मा का रिजल्ट है, फायदा भी होगा तो मेरे कर्मा का रिजल्ट है। मुझे आज क्या करना है? आज मुझे बस अपना 100% देना है, भूल जाना है रिजल्ट क्या होगा, कौन क्या सोचता है, कैसा होने वाला है, सब कुछ भूल करके कृष्ण को समर्पित होते हुए 100% मुझे आज सरेंडर करके अपनी सर्विस करनी है। जी, तो जैसे हम वी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक हाउ टू स्टे इन प्रेजेंट एंड द पावर ऑफ नाउ, मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक व्हिच गोज लाइक द पावर ऑफ नाउ बाय ईका टोल, एंड उसमें से मैं एक स्मॉल पैराग्राफ शेयर करूंगा प्रभु जी आपके साथ भी, आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। हमारी जी इनर, दिस टॉपिक, दिस पैराग्राफ विल बी बेसिकली अबाउट द इनर वॉइसेस, so how राइट। our mind is a thinker and how we have an inner voice which makes us think। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसको आप अपनी इंटरप्रिटेशन से बताना कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं प्रभु जी। So the paragraph is like, what exactly do you mean by watching the thinker? You have probably come across mad people in the street incessantly talking or muttering to themselves. Well, that's not much different from what you and all other normal people do, except that you do it out loud. The voice comments, speculates, judges, compares, complains, likes, dislikes, and so on. The voice isn't necessarily relevant to the situation you find yourself in at that time. It may be reviving the recent or distant past, or rehearsing or imagining possible future situations. So here it often imagines things going wrong and negative outcomes. This is called worry. Sometimes this soundtrack is accompanied by visual images or mental movies. So ये पैराग्राफ बेसिकली बता रहा है कि हमारा माइंड एक थिंकर है, वी व्हाट वी स्पीक कंसिस्टेंटली इन आवर माइंड। तो ये मैंने राइट। इसलिए पढ़ा सो दैट आई कैन हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली द थिंकर, व्हाट एग्जैक्टली आवर माइंड इज एंड व्हाट डज इट डू इन दैट। हाँ, सो एक्चुअली हमारा माइंड, जैसे इसमें बताया गया, बिल्कुल सच बात है, जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं। तो इनर वॉइस क्या होती है? सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इनर वॉइस, हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर चलेंगे। हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 3 काइंड ऑफ बॉडीज वी हैव। फर्स्ट इज कॉल्ड एज पंच भौतिक शरीर, द 5 एलिमेंटल बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, अर्थ, ईथर, फायर। सो दिस 5 elemental body is called as पंच भौतिक शरीर। Inside this, there is a Sukshma Sharir, which is made up of mind, intelligence, and false ego. Mind means man, intelligence means buddhi, and false ego means mithya ahankar. So, under above this, when we go on the third body, which we are, soul, which is called as Satchitanand Vigraha, means we are made up of Sat, eternal, Chit means the knowledge of each and everything, and Anand means always blissful. So we all are blissful inside because we are part and parcel of God. So we are eternal. Soul never dies. इसीलिए किसी के मर जाने पे कहते हैं वो गुजर गए, वो चले गए। हम ये नहीं कहते कि अरे सामने तो बॉडी है, so who goes away, who passed away, he's lying in front of us. So we need to understand that we are the eternal soul which never dies. Gita says, "Nainam chandanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kalodanti apo, nainam shoshati maruta." The soul can never be cut by any weapon, can never be burned by fire, can never be wet by any water, or can never be dried by any air. So the soul is an eternal thing which we are. That is our real identity. अगर आज पूरा विश्व ये समझ जाए that we are the eternal soul which is always blissful, हमेशा आनंद में रह सकती है, लेकिन हम निरानंद में क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं? Just because of the misidentification कि मैं सोल नहीं हूं, मैं ये बॉडी हूं। ये जो है मिथ्या अहंकार के कारण जो मैं बॉडी मान के बैठा हूं अपने को, यही सारी प्रॉब्लम है सारा का सारा। अब इसमें आती इनर वॉइस। अब इनर वॉइस क्या है कि इस सोल के साथ में एक सुपर सोल है यानी भगवान, जो कि एक पेड़ पर बैठी 2 चिड़िया है, ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं। देन वन बर्ड इज कॉल्ड एज अ वॉचिंग बर्ड, अनदर बर्ड इज कॉल्ड एज अ एक्शन बर्ड। एक्शन बर्ड होगी सोल और वॉचिंग बर्ड होगी परमात्मा, भगवान। कहते हैं सबके सबके मन में, हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो वो परमात्मा अंदर बैठे। अब वो अंदर से आत्मा को शिक्षा देते हैं, गाइड करते हैं एज अ गाइड, है ना। अब वो गाइड क्या करते हैं? डोंट डू दिस वर्क। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इनर वॉइस, गॉड की वॉइस को ना सुन करके अपना माइंड जो है ना उसको बीच में ले आते हैं। माइंड इज अ सेकंड बॉडी। तो हमने 3 बॉडी की चर्चा करी। फर्स्ट इज सच्चिदानंद, देन इज माइंड, इंटेलिजेंस, इको, एंड थर्ड इज 5 एलिमेंटल बॉडी। तो हम पहले वाली इनर वॉइस की ना सुन करके, जो भगवान हमारे बिल्कुल साथ में सोल की, उसकी ना सुन के हम मन की सुनते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं, जो मन की सुनते हैं वो मंकी बन जाते हैं, है ना। मंकी क्या होता है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है, तो वो
मन की सुनता है। तो हमको मन की नहीं सुननी है, हमको अपनी इनर वॉइस परमात्मा की सुन। तो लोग बोलते हैं हम कैसे पता चलेगा कि मन बोल रहा है कि मेरा भगवान बोल रहा है? तो देखिए इसका सिंपल एग्जांपल देखें। वॉट एवर वॉइस कम्स फर्स्ट, जो सबसे पहली आवाज आती है वो परमात्मा की आवाज होती हम्म। है, और उसके बाद रोल प्ले करता है, माइंड प्ले करता है। जैसे एग्जाम्पल, ड्रिंक करना है, एवरीबडी नोज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन अंदर से सबसे पहले ड्रिंक करने जब व्यक्ति बैठेगा पहली बार, तो अंदर से आवाज आएगी ये गलत है, मत कर। तूने क्या पेरेंट्स से पूछा है? अभी ये भगवान बोल रहे थे। लेकिन सेकंड मन कहता है ओए तू बड़ा हो गया है, ले ले, क्या फर्क पड़ता है? तो ये माइंड ने बोला। अब हम माइंड की सुनते हैं लेकिन इनर वॉइस को हम इग्नोर करते हैं। नॉट ओनली वन टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। मान लो मुझे किसी के पैसे चुराने, किसी का मोबाइल चुराना है, पहली बार जब मैं उठाऊंगा और मन में आएगा रख लेता हूँ, पता नहीं किसका बहुत देर से पड़ा हुआ है, इनर वॉइस आएगी डोंट डू इट, जिसका भी होगा यू आर डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट, आप गलत काम कर रहे हो। लेकिन हम क्या करें, मन कहेगा अरे तेरा होता तो कोई वापस देता क्या, ले ले। तो ये हम माइंड के सुनते हैं इंस्टेड ऑफ द इनर वॉइस व्हिच इज द गॉड्स वॉइस। सो गीता सेज, इवन कृष्ण सेज टू अर्जुन कि अर्जुन यू आर लिसनिंग ऑफ योर माइंड कि ये मेरे फैमिली के लोग हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। यू हैव टू हियर व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रहा हूं। अगर तुम ये सुन पाओगे तो तुम सही एक्शन लोगे और तुम्हारा रिजल्ट भी सही होगा। तो हमें जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको ये समझना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि सबसे पहली वॉइस, दैट इज करेक्ट वॉइस कमिंग फ्रॉम द गॉड, बट वी कीप इग्नोरिंग इग्नोरिंग इग्नोरिंग। और एक टाइम पर गॉड कहते हैं चल जा, तू अपनी कर ले, अपने मन की कर ले, मेरी तो सुनना ही बंद कर। इवन अगर हमारे पेरेंट्स भी हो, वो हमको थोड़ा सा गाइड करेंगे और कुछ गाइडेंस हम उनकी सुनना बंद कर दें, फिर पेरेंट्स भी इग्नोरेंस मोड पे डाल दें कि तुम सुनते तो हो ही, क्या गाइड करेंगे। सिमिलरली हैपनिंग विद गॉड। गॉड चाहते हैं, भगवान चाहते हैं हमको गाइड करें, हम हो उनसे गाइड। कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस पूरे जगत के गुरु हैं भगवान, हृदय में बैठे हैं सबसे नजदीक। हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, ऐसा नहीं है कोई ये इल्यूजनरी किताब है या किसी राइटर ने लिख दी। इट इज अ गॉड, भगवत गीता इज अ सॉन्ग सung by the god, and Krishna is saying Arjuna 5000 years back, 5000 साल पहले बोला था कि अर्जुन हृदय देशे, आई एम रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ योर हार्ट, मैं तुम्हारे हृदय के पास बैठा हूँ। अब मैं यहाँ की आवाज तो सुन नहीं रहा हूँ और दुनिया में मैं अपने मन को घुमा रहा हूँ और दोस्तों की सुन रहा हूँ, और इसलिए इल्यूशनरी वर्ड में फंस गया हूँ। अगर मैं एक बार अपने इनर वॉइस सुनने लग जाऊं, भगवान की आवाज, तो बस अब वो हम सुनते नहीं। उसके लिए क्या है, सेकंड ऑप्शन गिवन बाय गॉड कि अगर तुम मेरी नहीं सुन रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे गुरु के रूप में प्रकट होके उसके हृदय से बोलूंगा, उसकी सुन लो। तो लोग कहते हैं जी गुरु जी की भी क्या जरूरत है, हमें गुरु ही क्यों बना ले। तो लाइफ में अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हो, स्पिरिचुअल मेंटर्स हो, टीचर्स हो, देन वी कैन हैव अ राइट गाइडेंस व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू। जी, तो इसमें मैं आपसे एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज पूछना चाहूंगा प्रभु जी, दैट with so much available on the internet today, everyone aspires to have more. So how would you guide as a spiritual speaker to have control over our emotions and not let the emotions to influence or overpower our brain? Emotions should be there. Emotions should be there. Emotions are very good, and emotion is a result of that we are a soul. Soul has all the emotions. Once we are dead, the soul is out. We are out of the body. Then the body does not laugh. Body does not cry. It means that the emotions are there inside. हमारे अंदर emotions हैं और होने भी चाहिए. But emotions इतने ना हो कि वो हम common sense का इस्तेमाल करना भूल जाए. Common sense is such a sense which is not available in the common people. So आज लोग इंटरनेट का मिस यूज भी कर रहे हैं और उसका करेक्ट यूज भी है। हम लोगों की जब ट्रेनिंग होती है इस्कॉन में, हमको एक बहुत अच्छी चीज बताई जाती है that do not believe on anything which does not have references from the authorized scriptures. शास्त्रों से जब तक उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है ना, उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। We should not accept anything coming on the Google or internet which does not have scriptural references. शास्त्रिक प्रमाण होना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो अवेलेबल ना हो। आज जर्मनी की आर्मी ऋग्वेद पढ़ के अपनी आर्मी को चलाते हैं। आज पेरिस में लोग, अमेरिका में लोग वेदों को पढ़कर अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे भारत में आता था हल्दी वाला दूध, पॉपुलर है, सब लोग पीते हैं। अमेरिका में मेरा एक फ्रेंड है, वो बता रहा था दैट द पॉपुलर ड्रिंक नाउ डेज, हेल्दी ड्रिंक इज कॉल्ड टर्मरिक लैटे। टर्मरिक लैटे मीन्स हल्दी वाला दूध, और वो डॉलर्स में लोग खरीद के पी रहे हैं हेल्दी ड्रिंक। और यहाँ पर हमारे घर का ये
तो ये चीज है, हम अपने स्क्रिप्चर्स को भूल गए हैं और हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर सो कॉल्ड फिलोसफर्स के माध्यम से अगर ज्ञान को अर्जित करना चाहेंगे, वांट टू अर्न द नॉलेज थ्रू दी सो कॉल्ड फिलोसफर्स। एक बहुत बड़े हम्म फिलोसफर थे, उनकी बुक बड़ी पॉपुलर थी, डेनियल कार्ने। डेनियल कार्ने ने किताब लिखी हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, और कुछ दिन बाद ही वाज फाउंड दैट ही हैंग्ड हिमसेल्फ, सुसाइड किया उन्होंने। उनके पिलो के पास में एक पर्ची मिली और उस स्लिप में लिखा था दैट आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जिनकी सबसे बड़ी सेलिंग बुक थी, नंबर 1 बुक सेलर थे, हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, डेनियल कार्ने, वो खुद फ्रस्ट्रेशन से मरे। क्यों? हम्म जो सॉल्यूशंस फिलोसफर्स के द्वारा दिए जाते हैं, ये सॉल्यूशंस बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, नॉट लॉन्ग लिव्ड नहीं होते हैं। बट जो जो सॉल्यूशंस हमारे भगवत गीता, भागवतम या हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, वो सॉल्यूशन लॉन्ग लिव्ड होते हैं, एटर्नल होते हैं, और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होती, नो मिस्टेक्स डन, और वो 100% सॉल्यूशंस हैं। सो वी शुड promote to our Indian youth, to our international youth, that they should come up and they should start reading our old Vedic scriptures. जी। तो जैसे आपने बताया वी शुड बिलीव व्हाट आर ग्रंथ्स है, व्हाट भगवत गीता हैज और वट एवर एनी होली बुक हैज। सो apart from that, what I believe is our mind should control emotions. But what we see today, or if I imply it on myself, in certain situations emotions tend to control our mind. And I just like to ask you that how do you see it, whether it is good, bad, or whether it's normal? So I want to give you an example of a chariot. एक रथ का एग्जाम्पल लेते हैं। रथ के अंदर 5 घोड़े हैं। हम्म उस रथ के ऊपर एक लगाम होती है और उसको चलाने वाला एक सारथी होता है, और उसके ऊपर एक एक पैसेंजर होता है जो कि एज ए गेस्ट जो भी उसमें बैठता है। हम्म So the 5 horses are describing as in 5 senses of our body, 5 knowledge acquiring senses. बचपन में सिखाए जाते हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख है जिससे हम देख करके ज्ञान लेते हैं, कान है जिससे हम सुन करके ज्ञान लेते हैं, जीभ है जिससे हम टेस्ट बर्ड्स के द्वारा ज्ञान लेते हैं, स्किन है जिससे हम कोल्ड है कि हॉट है हम ज्ञान लेते हैं, और हम अपनी नोज के द्वारा स्मेल करते हैं कि बेड ऑर्डर है या गुड ऑर्डर है। सो ये 5 सेंस ऑर्गन्स, दीज आर लाइक 5 हॉर्सेस इन अ चैरियट। अब इसको खींचने वाली जो लगाम है, दैट इज कॉल्ड एज मन, माइंड, और इसको चलाने वाली है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और बुद्धि को गाइड करने वाला है पैसेंजर जो कि पीछे बैठा है, विच इज आत्मा, सोल। अब लोग समझते हैं कि सेंसेस को कंट्रोल करूंगा तो मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो बुद्धि कंट्रोल होगी, बुद्धि कंट्रोल होगी तो पैसेंजर कंट्रोल होगा। बट इसको वाइसी वर्सा समझना चाहिए। वाइसी वर्सा समझने का मतलब है कि अगर हम अपनी आत्मा को पुष्ट करें, सोल को सॉलिडिफाई कर लें, तो हमारी इंटेलिजेंस शार्पन होगी, इंटेलिजेंस शार्पन होगी तो हमारा माइंड कंट्रोल होगा, और माइंड कंट्रोल होगा तो 5 सेंसेस भी कंट्रोल होंगे। तो जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, लाइक इफ यू टेकन माय एग्जांपल, सिचुएशंस आती है, बच्चे को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई लॉस हो गया, मोबाइल क्रैक हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, आग लग गई, कोई भी सिचुएशन आती है। इन सच सिचुएशंस हाउ डू आई कंट्रोल माय इमोशंस? व्हाट टू टेल यू, once one day I was chanting in the morning 4:30 a.m. I got a call that my father met with the bus accident, और उनको उस बस से मतलब 50 फीट ब्रिज के ऊपर से बस नीचे गिर गई, और उसमें 54 पैसेंजर्स थे जिसमें से 40 ऑन द स्पॉट वर डेड, ऑन ओनली 14 सर्वाइवर्स थे, और मुझे ये नहीं पता था माय फादर इज डेड और अलाइव। मेरे पास टाइम था, यू हैव अ टाइम ऑफ 2 to 3 आवर्स टू चेक द डेड बॉडी और द लिविंग बॉडी। आप आइए सिचुएशन पे और देख लीजिए। सो 4:30 AM आई वाज चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम मेडिटेशन कर रहा था। उस मेडिटेशन में इतनी पावर थी, मेरे को सिंगल ड्रॉप टीयर का नहीं आया, और एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई टुक ऑल द पेपर्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फोन चार्जर, the car key and everything, and I drove to the accidental site which is 3 hours journey from my place। 3 घंटे मैंने ड्राइव किया, कोई बीच में ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ कि अरे मैं बिखरा जा रहा हूँ, मैं गिरा जा रहा हूँ, क्या होगा। जहां पर गया वहां पर ऑल वाज ब्लड ऑल अराउंड,
सब जगह किसी का हाथ कटा है, किसी गर्दन कटी है. At such situation, I was able to manage my emotions, my family emotions. दूर दूर के लोगों के फोन आ रहे हैं, उनको मैनेज करना, मीडिया को मैनेज करना. Because by the YouTube, I am a little bit known personality. People were asking many questions. Times of India and many other newspapers was there. सबको बैलेंस करना और साथ में ये ढूंढना मेरे फादर की स्टेट क्या है. ये सब कैसे बैलेंस हो पाया? बिकॉज आई वॉज मेडिटेटिंग. माई सोल इज लास्ट 20 years में जो मैंने अपना मेडिटेशन किया है, जो जपा किया है, उस जपा की पावर से इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है कि छोटे मोटे माइंड स्ट्रगल से घबराता नहीं है. अच्छा हो बुरा हो बैलेंस करना आता है. रोएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, पहले अपने, क्योंकि अगर नहीं रोने लग जाऊंगा, आई एम द ओनली मेंबर, ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली मेंबर हु इज वर्किंग मेंबर, हु इज एन एक्टिव मेंबर. बाकी सब लोग जो है या तो फीमेल्स है या किड्स है या तो नॉन वर्किंग पीपल है. ओनली आई एम द वन हु इज एक्टिव मेंबर. मैं ही अगर उदास होकर गिर जाऊं तो हु विल हैंडल द सिचुएशंस? सो ये पावर आती है भगवत गीता से. इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अर्जुन, अर्जुन वाज विद कृष्ण गॉड. भगवान साथ में है. बाकी इमोशंस की बातें छोड़ दीजिए, भगवान के साथ है. अभिमन्यु मार दिया गया है सामने सामने. अर्जुन उतरे रथ से और थोड़े से आंसू बहा के पुनः अपने युद्ध को प्रारंभ किया. नेक्स्ट डे अगेन अर्जुन वाज फाइटिंग. नेक्स्ट डे उनको थोड़ा भी इमोशन से लेफ्ट राइट नहीं कर पाया कि मेरा बेटा मारा गया है. अरे भगवान तुम क्या कर रहे थे? कहां थे तुम? क्या तुम रक्षा नहीं कर सकते थे? नो, no questions. 100% balanced mind. It is because mind is controlled by intelligence and intelligence is controlled by soul. If soul is 100% confident that yes, I am dependent on God, then intelligence becomes sharpened. Intelligence becomes sharpened, controls the mind, and mind controls the five senses: eyes, nose, ears, everything. Right. तो ये मतलब ये चीज समझने के लिए किसी को ये सेशन 2-3 बार ही देखना पड़ जाएगा जब आपने इतनी इट इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू अंडरस्टैंड हु इज नॉट मेडिटेटिंग और इज नॉट हु डज नॉट हैव अ कंप्लीट नॉलेज हाउ द सोल इज इन हिज बॉडी. तो ये किसी को भी, क्योंकि मैं इतने ध्यान से सुन रहा हूँ, ये मुझे भी पता है. ये जब हम रिकॉर्डिंग करके विल पुट दिस लाइव ऑन यूट्यूब, ये डेफिनेटली मैं भी खुद से दोबारा सुनूंगा टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कंप्लीटली. तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बिजनेशन टीवी. आप कुछ और बोलना चाहेंगे एज वी कंक्लूड दिस सेशन? उदयवीर जी, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा दैट यू आर डूइंग अ वंडरफुल सेवा सर्विस ऑफ लाइक थ्रू बिजनेशन टीवी. यू आर ब्रिंगिंग सो मेनी concepts. It is not a matter of earning or a fame, because whatever you are doing, I have seen you are doing it for community. Whether it is your icon awards, because you are motivating the general people that you should go and do something good for, because जो बड़े corporates हैं उनको तो सब लोग appreciate करते हैं, but the small entrepreneurs को appreciate करने का जो आप लोगों ने शुरू किया, that and this also, that bringing the people and asking the good questions so that how to live in present. आज में कैसे जिया जाए, आज की जो पावर है, आज जो मैं कुछ कर सकता हूँ वो कल का नहीं पता, परसों का नहीं पता. so wonderfully you are doing it. so आपकी पूरी फैमिली जो भी बिज नेशन के माध्यम से जो कर रहे हैं, hats off to you people that you are doing it for community without any ulterior motives behind it. कोई पैसा कमाना या कोई फेम इसके पीछे पार्ट नहीं. it is just general informations transforming to the community ताकि पूरा समाज का कुछ भला हो, अच्छा हो. so ये बहुत अच्छा टास्क आप कर रहे हैं प्रभु जी. मैं बिल्कुल डेफिनेटली हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन, जिसमें हम भगवत गीता के बारे में और श्लोकास के बारे में बात करेंगे और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. विल डेफिनेटली गेट टू लर्न मोर. True. Thank you. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी.